গংগাৰ পিছত এইবাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আমন্ত্ৰণ অভিযান। ব্ৰহ্মপুত্ৰ আমন্ত্ৰণ অভিযানৰ দায়িত্বত থকা 20জনীয়া দল উপস্থিত হ'ল ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৰ দক্ষিণ হালমাৰা মানকাছৰ জিলাৰ শিশুমাৰাত সফল সমাপ্ত। যোৱা 29দিনীয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত ৰাফটিং কৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰত 1000 কিলোমিটাৰ ভ্ৰমণ কৰি নদীৰ জলৰাশিৰ গুণাগুণ খহনীয়া আদি সন্দৰ্ভত প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰি অৱগত কৰিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক। দক্ষিণ হালমাৰা মানকাছৰ জিলাত ব্ৰহ্মপুত্ৰ আমন্ত্ৰণ অভিযানকাৰী দলক উষ্ম আদৰণি দক্ষিণ হালমাৰা মানকাছৰ জিলাৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডৰ। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ জলশক্তি মন্ত্ৰণালয়ৰ অধীনস্থ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ গেলিং অঞ্চলৰ পৰা বিগত বৰ্ষৰ 23 ডিচেম্বৰ তাৰিখে কেন্দ্ৰীয় ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে শুভাৰম্ভণি কৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ আমন্ত্ৰণ অভিযানৰ দায়িত্বত থকা 20জনীয়া দলটো 29 দিন পৰিভ্ৰমণ কৰি আজি ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ শিশুমাৰাৰ ঘাটত উপস্থিত হৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আমন্ত্ৰণ অভিযানৰ সফল সামৰণি পেলায়। অভিযানকাৰী দলটি আহি দক্ষিণ হালমাৰা মানকাছৰ জিলাত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত দক্ষিণ হালমাৰা মানকাছৰ জিলা প্ৰশাসন আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডৰ ফালৰ পৰা উষ্ম আদৰণি জনোৱা হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেৰে দলটিক আদৰণি জনোৱাৰ মুহূৰ্তত উপস্থিত থাকে অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত লক্ষ্মী কুটুম আৰু অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাজেন্দ্ৰ ওজা, BSFৰ বিষয়া আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডৰ উচ্চপদস্থ বিষয়া। ভাৰতৰ জলশক্তি মন্ত্ৰী গজেন্দ্ৰ সিং শেখাৱতৰ দোহিতা সুবাসিনী শেখাৱতৰ নেতৃত্বত অহা 20জনীয়া গৱেষকৰ দলটিয়ে NDRFৰ 6খন নাৱেৰে বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বক্ষত প্ৰায় 1000 কিলোমিটাৰ ভ্ৰমণ কৰি নদীৰ জলৰাশিৰ গুণাগুণ খহনীয়া আৰু মাছৰ লগতে শিহুকে ধৰি পানীত থকা বিভিন্ন জীৱ সন্দৰ্ভতো গৱেষণা চলায়। এই যাত্ৰাত NDRFৰ 20জনীয়া এটা দলে তেওঁলোকক সংগ দিছে। আনহাতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত বসবাস কৰা লোকসকলৰ জল জীৱনৰ জৰিয়তে আৰ্থিক বিকাশ কেনেকৈ সাধন কৰিব পাৰি সেই বিষয়েও অধ্যয়ন কৰিছে দলটোৱে। ইতিমধ্যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলৰাশিৰ প্ৰায় 1000 কিলোমিটাৰ পথ অতিক্ৰম কৰি শিশুমাৰাত ব্ৰহ্মপুত্ৰ ঘাটত উপস্থিত হোৱা 20জনীয়া দলটোত সুবাসিনী শেখাৱতৰ উপৰিও আছে IIT গুৱাহাটী, ভাৰতৰ আভ্যন্তৰীণ জলপথ কৰ্তৃপক্ষ, কেন্দ্ৰীয় আভ্যন্তৰীণ ফিছাৰী গৱেষণা ইনষ্টিটিউট, ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ড আৰু কেন্দ্ৰীয় জল আয়োগৰ গৱেষকৰ দল। অভিযানকাৰী দলটিয়ে নদী কাষৰীয়া স্থানীয় ৰাইজৰ সৈতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আমন্ত্ৰণ অভিযানৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যৰ বিষয়ে বহলভাৱে আলোচনা কৰে। पहले 29 डेज पहले हमने ब्रह्मपुत्र आमंत्रण अभियान जो यात्रा है, ये जो यात्रा है इसकी शुरुआत की थी गेलिंग अरुणाचल प्रदेश से, जो कि इंडिया और चाइना के बॉर्डर के पास है। 29 डेज का हमारा ये जो सफ़र है आज इसका आखिरी पड़ाव है। हम असम रालगा में आए हैं। लगभग 1000 किलोमीटर की यात्रा दूरी हमने तय की। ऐसा जब मैप किया गया था तब लिखा था कि लगभग 925 किलोमीटर्स होगा, बट क्योंकि आप मैप करते हो तो एक तो सबसे शॉर्टेस्ट पॉइंट्स को कवर करते हो, और जब नदी में जाते हैं तो इतने कहीं वाटर लेवल ज़्यादा है, कहीं कम है, तो जिस कोर्स को हमने वो लगभग 1000 किलोमीटर की हमने यात्रा पूरी की है। क्योंकि हम क्या है अपने लिए पेड़ों को काटते हैं। पेड़ जब काटते हैं तो क्या होता है, जो पृथ्वी का जो तापमान है, टेम्परेचर वो बढ़ता है। वो तापमान बढ़ने से पानी भाप ज्यादा बनता है और बारिश ज्यादा होती है। उससे क्या होता है, बाढ़ भी उसी हिसाब से आती है। इसका मतलब ये हुआ कि अपने विनाश का कारण भी हम ही है, पेड़ काट करके। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप कृपया पेड़ लगाएं। आपको ना सही, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ी को वो साथ दे। और जो व्यापार करते हैं उन लोगों का ठीक है, लेकिन जो फिशिंग से जो जुड़ी हुई है उन लोगों का हालात बहुत ख़राब है। हम लोगों ने एक सर्वे किया है NSO के अंडर में,
पूरा ब्रह्मपुत्र स्ट्रेच में जितना भी फिशिंग विलेजेस है वहाँ पे जाके हम लोगों ने उन लोगों के साथ बात किए हैं, तो वो लोग बताते हैं कि आज जो फिश मिलते हैं ब्रह्मपुत्र से वो उसका जिंदगी चलाना बहुत मुश्किल होता है। एंड रियल भी है ये बात, हमने जाके देखा है। उन लोगों के पास रहने के जगह के अलावा कुछ भी नहीं है। अगली जो फिशिंग नेट है वो तक एफोर्ड करने के लिए पैसा नहीं है। নদীৰ সৈতে সহৱস্থানৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশটোৰ প্ৰতি নৱপ্ৰজন্মৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণৰ লগতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বিশাল জলৰাশিৰ বিষয়ে অধ্যয়নৰ জৰিয়তে জলশক্তি মন্ত্ৰণালয়ৰ ওচৰত দাখিল কৰা প্ৰতিবেদনৰ আধাৰত ভাৰত চৰকাৰে পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব। আনহাতে দেশে স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ পিছত ভাৰত চৰকাৰৰ জলশক্তি বিভাগে গংগাৰ দৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত চলোৱা এনেধৰণৰ গৱেষণাৰ জৰিয়তে নিশ্চিতভাৱে অনাগত সময়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰ অসমৰ বাবে আশীৰ্বাদ স্বৰূপ হৈ পৰিব। আনহাতে ভাৰতৰ মুঠ জলৰাশিৰ 40% উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ জলভাণ্ডাৰ বুলি অভিহিত কৰে ভাৰতৰ জলশক্তি মন্ত্ৰী গজেন্দ্ৰ সিং শেখাৱতৰ দুহিতা সুভাষিনী শেখাৱতে। ब्रह्मपुत्र की यात्रा बहुत अच्छी रही। हमने 23 दिसंबर को ये यात्रा शुरू की थी। आज 29 डेज में 29 दिन में हमने ये यात्रा असम का जो कि इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर है वहाँ पूरी की है। हिंदुस्तान में ब्रह्मपुत्र जितनी बहती है उस पूरी को हमने ट्रैवल किया है। उस पूरे नदी के माध्यम से ही हमने पूरी यात्रा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ कि मैं इस अभियान दल का ना सिर्फ हिस्सा बन पाई बट इसका सक्सेसफुली नेतृत्व भी। क्या क्या देखने में क्या क्या मिला? देखिए, ब्रह्मपुत्र जो है 2 राज्यों में, जैसे मैंने कहा कि 2 राज्यों में अरुणाचल प्रदेश और असम, दोनों में नदी का नेचर एकदम अलग है। असम एंटर होते ही, पासीघाट के आगे से असम एंटर होते ही प्लेन शुरू हो जाता है। उससे पहले जो नदी थी वो क्योंकि हिली एरिया है, रॉकी टेरेन है, तो वहाँ जो हमें सबसे बड़ा चैलेंज मिलते थे, जैसे मैं चैलेंजेस की अगर बात करूँ तो अरुणाचल में रैपिड्स बहुत थे। पहला दिन जो हमारा था, जो हमने गेलिंग से टूटिंग हमें यात्रा करनी थी, उसी में ग्रेड 6 जो कि एडवेंचर और जो एडवेंचर स्पोर्ट्स और राफ्टिंग में जिनको ध्यान होगा वो बता सकते हैं कि ग्रेड 6 बहुत ही डिफ़िकल्ट लेवल का एक वो होता है। कमर्शियली कोई भी ग्रेड 4 से ऊपर नहीं करता है। जितने भी राफ्टिंग गाइड्स होते हैं और कोई भी ग्रेड 4 से ऊपर नहीं करता है। ग्रेड 4 तक करना सेफ मानते हैं। ग्रेड 4 बहुत ऊपर 4+5 बहुत चैलेंजिंग होते हैं। पहले ही दिन हमें ग्रेड 6 रैपिड था जिसको क्रॉस करना था, और पूरे 220 किलोमीटर का जो अरुणाचल का स्ट्रेच था कंटिन्यूसली उसमें रैपिड्स थे। ऐसा कोई भी दिन नहीं था कि हमें बीच में एक रैपिड नहीं मिला, या इस स्ट्रेच में 6 से 10 रैपिड्स रोज मिलते थे। और उसके अलावा नदी में इतने बॉइल्स होते थे, व्हर्लपूल्स बनते थे, इतना रॉकी टेरेन था, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। यहाँ पे नदी रोड साथ साथ नहीं होती है, पर अरुणाचल में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, जैसे एक जगह है वहाँ पे चेरिंग, जहाँ पे हम 2 दिन तक पूरी लैंड से, हमारे पास ना फोन में नेटवर्क था। यहाँ पे नदी में फोन में नेटवर्क आता है, वहाँ नदी में फोन में नेटवर्क भी नहीं आता है। हमारे पास ना कोई कनेक्टिविटी थी, ना कुछ कोई और सोर्स था। जो हमारी सपोर्ट टीम है NDRF हमें रेस्क्यू प्रोवाइड करने के लिए, वो भी हमारे तक नहीं पहुँच सकते थे। तो 2 दिन हम अपने आप पे थे। हमारी जो राफ्ट है वो पलट भी गई थी एक रैपिड में, तो पर थैंकफुली कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी को चोट नहीं आई। तो इस तरह के चैलेंजेस रहे। जैसे ही हम असम में एंटर किए, हम जैसा मैंने बताया 31 को हमारा असम में पहला हॉल्ट था, तो जब बाकी टीम सब ऐसे ये निश्चिंत हो गए एक तरह से कि अब कोई चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़ेंगे, अब तो आसान है यात्रा। पर पहले ही दिन हमें जोनाई से डिब्रूगढ़ जाना था, और हम पहले ही दिन एक चैनल में फंस गए। हमें लगा ये मेन चैनल है, बट ऊपर क्योंकि नदी इतनी ज़्यादा ब्रेडेड है, नीचे आते आते फिर भी एक मेन चैनल डिफाइन हो जाता है। ऊपर नदी इतनी ब्रेडेड और इतने चैनल्स में डिवाइडेड है, हमें लगा कि ये मेन चैनल है। हम चले गए 6 किलोमीटर राफ्ट करके गए, पैडल चप्पू मार के, तब पता लगा कि ये मेन चैनल नहीं था, डेड एंड आ गया। वापस 6 किलोमीटर अपस्ट्रीम चप्पू मारना और फिर मेन चैनल तक पहुंचना, और इस सब में होते होते सनसेट नदी में ही हो गया, और डिब्रूगढ़ पहुंचे तब तक अंधेरा हो गया था। और अंधेरा क्योंकि यहाँ नॉर्थ ईस्ट में जल्दी होता है, तो इस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़े। जब काजीरंगा वाला बेल्ट में आए तब, क्योंकि यूजुअली हम
बीच में अगर हम खाना खाने रुक रहे हैं कुछ भी, हम कहीं भी रुक जाते थे, बट उस बेल्ट में हमें बताया गया कि वहाँ नहीं रुक सकते हैं। रात को हम टेंट लगा के जो हमें सबसे सुंदर साफ सुथरी जगह मिलती थी वहाँ रुक जाते थे, बट वहाँ पे रात को भी नहीं। कई बार हुआ कि गांव में रुके हैं पर गांव वालों ने बोल दिया कि अब हम आपको रात को नहीं मिल सकती क्योंकि ये एलिफेंट कॉरिडोर है। तो इस तरह की समस्याएं जो है उनका सामना करना पड़ा। एक डिप्टी कमांडेंट थे फर्स्ट NDRF के हमारे साथ, वो एक बार बैंक पे आ गए बट फिर रियलाइज हुआ कि वहाँ दलदल है और वो जब आए गए तब तो सिर्फ अपनी एंकल्स तक पानी उस मिट्टी के अंदर थे, बट थोड़ी देर में वो बेस से ऊपर तक मिट्टी के अंदर, उनको रेस्क्यू करके लाना, इस तरह के चैलेंजेस लगातार हमें फेस करने पड़े। तो ऐसा जो हम लोग मान के चल रहे थे कि असम आसानी से हो जाएगा, असम में ज़्यादा चुनौतियाँ मिली हैं, हमें ज़्यादा प्रकार की चुनौतियाँ मिली। तो पर मैं शुक्रिया करना चाहूँगी स्टेट गवर्नमेंट का, असम और अरुणाचल प्रदेश दोनों की, और NDRF का, जल शक्ति मंत्रालय का, ब्रह्मपुत्र बोर्ड का, कि उन्होंने हमें इतना सहयोग दिया और सफलतापूर्वक मैं इस अभियान का नेतृत्व कर पाई। ये सब उन्हीं की। सर एक बात पूछना चाहेंगे, नदी के नजदीक रहने वाले लोग कैसे रह रहे हैं? जी, तो जो एक्सपीडिशन हमारा जो एक्सपीडिशन है ये सिर्फ एक राफ्टिंग अभियान नहीं था कि राफ्ट के माध्यम से हम अपना बहादुरी और अपना जो एंड्योरेंस है उसका प्रदर्शन नहीं करना था। ये इस जो अभियान का मुख्य उद्देश्य जो था, माननीय मंत्री जी का मानना है, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी का, कि नदी के बारे में जानना है तो नदी के अंदर जाना पड़ेगा। जैसा मैंने अपने स्पीच में भी कहा कि ये एक्सपीडिशन जो है, आमंत्रण अभियान, ये इस सीरीज़ का दूसरा एक्सपीडिशन है। 2019 में हमने गंगा आमंत्रण अभियान किया था, मैं उस अभियान दल का भी हिस्सा थी। तो उस अभियान में यही वो था कि कैसे पब्लिक आउटरीच, अगर हम ऐसे ही नदी के माध्यम से जाएं तो एक तो ये भी होगा कि नदी के एकदम बैंक पे जो लोग रह रहे हैं हम उनसे नहीं मिल पाएंगे। कंटिन्यूसली अगर हमें उन्हीं के कांटेक्ट में रहना है तो हमें नदी के माध्यम से ही जाना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने ये जरिया चुना। और मैं मानती हूँ, पर जब भी हम गए हैं इस एक्सपीडिशन में आने से पहले से भी, जब भी असम की बात करते हैं या ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं, तो पहला थॉट जो हमारे दिमाग में आता है, जब भी हम ब्रह्मपुत्र के बारे में सुनते हैं, जो पहली चीज़ हमारे दिमाग में आती है वो ब्रह्मपुत्र से जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है वही आती है। इस सब में हम ब्रह्मपुत्र का जो एक्चुअल पोटेंशियल है और ब्रह्मपुत्र हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट रिसोर्स है उस सब को कहीं भूल गए। तो ब्रह्मपुत्र से नो डाउट जो नुकसान हो रहा है, बैंक इरोजन हम जगह जगह देखते आए हैं, कितनी बड़ी समस्या है। फ्लडिंग हम हर साल देखते हैं और सुनते भी हैं। तो उन सब समस्याओं के लिए कैसे एक ठोस इसका निस्तारण निकाला जाए, कैसे एक कॉन्क्रीट सोल्यूशन निकाला जाए। हम रोड से सर्वे आज तक होते आए हैं, पर वो इतने एक्यूरेट हम उन्हें नहीं मान सकते क्योंकि रोड नदी साथ साथ नहीं जाती है। तो वो जो जगह है वो मिस होनी ही है। कुछ एक आइडेंटिफाइड जगह है कि यहाँ से सैंपल लेना है, यहाँ से सैंपल लेना है, पर उसको आप इतना एक्यूरेट नहीं मान सकते। हम नदी के अंदर से सैंपल्स ले रहे हैं, कई बार होता लगता था कि नहीं, थोड़ा अंदर जाके इस चैनल में से भी सैंपल लेना चाहिए। तो उस तरह से अगर सैंपल्स कलेक्ट किए हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट होंगे, ज़्यादा प्रिसाइज होंगे। तो जो ब्रह्मपुत्र से जो समस्याएं हो रही है उनका एक कॉन्क्रीट सोल्यूशन निकालने में हमें लगता है कि अगर जितना प्रिसाइज हमारे पास डेटा होगा उतना ज़्यादा हमें फायदा होगा। दूसरा जो इस अभियान का उद्देश्य है कि जो ब्रह्मपुत्र बेसिन पे लोग रह रहे हैं उससे ब्रह्मपुत्र को जो पोटेंशियली नुकसान हो सकता है उसको अगर हम अभी से रोक लें, अभी से हम इतनी जागृति अपने अंदर ले आए। मैं कहना चाहूँगी, मैंने गंगा पूरी देखी है, ब्रह्मपुत्र भी देखी है अब पूरी, और ब्रह्मपुत्र मैंने जितनी भी नदियाँ देखी उसके अलावा भी बाकी नदियाँ कुछ कुछ पार्ट्स में देखी है। ब्रह्मपुत्र सबसे साफ नदी है दिखने में, विजुअली पोल्यूटेंट्स में। अगर पानी के अंदर क्वालिटी में कोई वो है तो वो सिफरी के और IIT गुवाहाटी के जो वाटर सैंपल के रिपोर्ट्स आएंगी तब हमें ज़्यादा मैं अच्छे से बता पाऊँगी। पर विजिबल पोल्यूटेंट्स नहीं दिखते इतने, पर दिखने चालू हुए थे। अगर अरुणाचल की बात करें तो अरुणाचल क्योंकि आबादी नहीं है नदी के पास में तो वो नो डाउट क्लियर होना ही था। असम में भी जैसे मैंने बताया निमती घाट के आगे से कंटिन्यूसली दिखते आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो कि जो कैजुअल अप्रोच हमारा बन गया है, हम इतना लाइटली हमारे रिसोर्स को लेना शुरू कर दें कि जब तक अभी जो समस्या नदी से उत्पन्न हो रही है उसका हम सोल्यूशन निकालें, एक कॉन्क्रीट सोल्यूशन, पुख्ता सोल्यूशन निकाल पाएँ, तब तक हम नदी के लिए और
अपने आप के लिए भी एक नई समस्या खड़ी कर दें। हम क्यों उस टाइम का वेट करें कि जब ब्रह्मपुत्र की हालत वैसी होगी तब जब हम जागेंगे और तब हम काम करना शुरू करेंगे। अभी से अगर हम संभल जाएं तो हम नदी को उस हाल में पहुंचने से पहले ही रोक देंगे। মানকাছৰৰ পৰা মিজানুৰ ইছলামৰ ৰিপৰ্ট অসম টুডে।